Hello students. In the last video we have seen that how to solve the examples regarding to the if the variable is having both sides. Now today I am here with little different examples. Again we are discussing about the applications of the linear equation in one variable. That's how I have written here title. If you'll see, then you will come to know that some more applications. Some more applications. Here also we are going to discuss about the word problem. Before that also, before exercise 2.2 we have discussed about some word problems. Like that same type of little word problems we are going to solve over here, and we will see how to solve those examples regarding to some more applications. Here first example I have written, you will see the digits of a two digit number differ by 3 if the digits of the two digit number differ by 3, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? Okay, listen here. The digits of the two digit number, any number, suppose we will consider any two digit number we will consider, then that two digit number is having two digits. Which one? Those two digits? First one is known as unit place digit and second one is known as tens place digit. Units place digit is multiplied by 1 and tens place digit is multiplied by 10, and we are calling that those are the place values of that respective digits. Now I will tell you what I talk over here, that I am going to write over here, then you will come to know that what is this example, how to solve this example. Solution. Listen here. The digits of the two digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? We have to find out that respective original number. How to find out? Look here. First of all, what we will do, we don't know. Suppose we want to find out the two digit number, we have to find out the digits of that respective number. Suppose we know the digits of that respective number, then easily we can find out that number. Then for finding that number, what we will do, we will consider the digits of that respective number. Consider means what? Let us consider the units place digit is x and the tens place digit is y. Okay, what I said, look here. Let us consider the units place digit is x and tens place digit is y. Let us consider unit place digit is x and tens place digit is y. Okay, now look here. The digits of the two digit number differ by 3, means the difference in between this tens place digit and this units place digit is x. We will use that condition and then we will follow further. Look here. But what is? Digits are differ by 3, but digits are differ by 3, we get. Okay, which are the digits? This is unit place digit and this is tens place digit, means y minus x is equal to 3. You may think like that x पहले है तो y बाद में है, तो पहले ये y और x क्यों लिखा? टेंस प्लेस डिजिट पहले लिखना है और यूनिट प्लेस डिजिट बाद में लिखना है. y minus x is equal to 3. Then what we will get? See, therefore look here. Here we can find out the value of y. How we can find out the value of y? We can transfer this minus x to the RHS. Y is equal to 3. It is minus, it will convert into plus. 3 plus x. Therefore we can write here y is equal to x plus 3 भी लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझे? 3 plus x means what? x plus 3. Now what we will do? Now the number is that original number we can find out now. Original number means the number which we will get by using that unit place digit and tens place digit. Now the number is, ओके अभी देखो एक्चुअली नंबर कैसे बनता है, एक्चुअली नंबर हम कैसे बनाते हैं. आर यू गेटिंग?
यूनिट प्लेस 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, ये 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है मैं तुम्हें एक पेज पे लिख के दिखा देता हूँ इधर। एक्चुअली 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, ये रफ वर्क के लिए तुम्हें यूजफुल हो सकता है। 2 डिजिट नंबर व्हेन वी आर गेटिंग एनी नंबर एंड दैट 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्स, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम शोइंग हियर। समझो मैंने एक नंबर लिया, समझो मैंने नंबर लिया है 55, ओके 55 नंबर लिया, ये इसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। अगर जनरली ये नंबर देखा जाए तो ये नंबर कैसे लिखते हैं, देखो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 5, तो 5 इंटू 1 होता है। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 5, तो 5 इंटू 1 होता है, कितना आएगा 5 इंटू 1 5। और टेंस प्लेस डिजिट क्या है 10, 10 प्लेस डिजिट क्या है 5, इधर यूनिट प्लेस का भी डिजिट, इधर यूनिट प्लेस का भी डिजिट 5 है और इधर टेंस प्लेस का भी डिजिट क्या है 5 है, समझे। तो जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, तुम्हें मालूम होगा ये। यूनिट प्लेस का जो डिजिट होता है इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है 5, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 इंटू 10 कितना हुआ 50, और दोनों की एडिशन होती है 50 प्लस 5, तो आंसर कितना आता है 55। समझे मैं क्या बोला, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ, देखो इधर अगर ये 55 है तो इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 एंड 10 इंटू 5। 5 इंटू 1 क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है इधर 5 है, तो यूनिट प्लेस के डिजिट को किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 से, और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है इधर 5 है और उसको टेंस प्लेस यानी कि 10 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या आता है 50 प्लस 5, दैट इज इन इक्वल टू व्हाट 55। यानी कि यूनिट प्लेस को डिजिट को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई होता है। 100 प्लेस हो तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, 1000 प्लेस हो तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, वही मैं इधर करने जा रहा हूँ अभी। देन द नंबर इज, ओके इधर मैं लिखता हूँ, देखो प्लस साइन बीच में। यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर द यूनिट प्लेस डिजिट इज व्हाट x, तो x इंटू क्या होता है 1 प्लस टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है y, बट y की वैल्यू हमने इधर निकाली है, देखो y इज इक्वल टू व्हाट x प्लस 3, इसलिए ये पहली कंडीशन इस एग्जांपल में उन्होंने वो दी है। कभी कभी वो नेक्स्ट टाइम कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन देते हैं, सेकंड कंडीशन है तो सेकंड टाइम में हमें यूज़ करना पड़ता है, पहले दिया है तो हमने पहले यूज़ किया है। y की वैल्यू हमने क्या निकाली x प्लस 3, तो इस x प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, x प्लस 3 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो उधर फिर से बता देता हूँ, यूनिट प्लेस डिजिट x उसको 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई होता है। टेंस प्लेस का डिजिट क्या है y, ओके एम आई राइट, टेंस प्लेस डिजिट इज व्हाट y, तो y की हमने वैल्यू निकाली इधर x प्लस 3, तो इधर पुट की, तो नंबर क्या आएगा देखो 10, 10 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो 10 इंटू एक्स 10x प्लस इंटू प्लस प्लस 10 इंटू 3 30, ओके 10 इंटू एक्स 10x प्लस इंटू प्लस प्लस 10 इंटू 3 30, बीच में साइन कौन सा है प्लस, x इंटू 1 x, देयरफॉर एडिशन करो 10x ओके प्लस 1x, 10 प्लस 1, ये मैं समझने के लिए ऐसे लिखता हूँ प्लस 30 इक्वल टू नहीं है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप नीचे लिखता हूँ तो तुम्हें अभी समझ में आएगा। 10x प्लस x 11x प्लस 30, तो नंबर हमें क्या मिला, ये नंबर मिला 11x प्लस 30। गॉट आइडिया, अंडरस्टूड। तो अभी देखो बाद में एग्जाम्पल में देखो तुम्हें समझ में आएगा। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अभी क्या करना है, देखो हमें नंबर क्या मिला 11x प्लस 30, एक नंबर मिला, तो हमें अभी क्या करना है, देखो इधर हमने ये टेंस प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट है, इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज यानी कि ये x इधर लिखना है और x प्लस 3 इधर लिखना है। इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर इसमें हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद एडिशन आती है, इधर दी है एडिशन देखो वी गेट 143, एडिशन दिया तो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो कैसे करेंगे देखो अभी, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट टू डू, आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू इंटरचेंज हियर डिजिट्स। ओके with interchange of digits 2 digit numbers is what I said, with
interchange of digits, two digit number is, अभी इंटरचेंज करो, इधर देखो, ये है टेंस प्लेस का डिजिट, ये है यूनिट प्लेस का डिजिट, इंटरचेंज करेंगे। 10 इंटू यूनिट प्लेस का डिजिट इधर आएगा, ये इधर जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई है, 1 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी बीच में साइन प्लस, साइन इज इक्वल टू नहीं, प्लस साइन। क्या किया है देखो, ये इधर और ये इधर लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये मैंने इक्वल टू ये लिखा है, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है। इधर मैं नीचे लिखता हूँ देखो समझने के लिए, 10 इंटू एक्स 10x, बीच में साइन प्लस, x प्लस 1 इंटू 1, सॉरी x प्लस 3 इंटू 1, x प्लस 3 होगा। ओके, देयरफॉर 10x प्लस x 11x प्लस 11x प्लस 3, 10x प्लस x 11x प्लस 3। तो अभी हमें इधर दो नंबर मिले देखो, 11x प्लस 30 एंड 11x प्लस 3। गॉट आइडिया, आर यू गेटिंग? तो अभी कंडीशन में जाओ, क्या कंडीशन है देखो इस एग्जांपल की। इफ द डिजिट्स आर, लिसन केयरफुली, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। इधर देखो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इंटरचेंज डिजिट्स करने के बाद हमें नंबर मिला 11x प्लस 3। अभी इनको ऐड करना है, ओके, बाय गिवन कंडीशन। ऐड करो, 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर क्या दिया है 143। ओके, हमें ऑलरेडी वो आंसर दिया है उन्होंने 143। सॉल्व करो अभी, 11x प्लस 11x 22x, 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 143। देयरफॉर 22x इस 33 को ट्रांसफर करो, इज इक्वल टू 143 माइनस 33। देयरफॉर 22x इज इक्वल टू 143 में से 33 गई है तो 110। अभी x की वैल्यू हम इधर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? डिवाइड दिस 22 टू 110, व्हाट विल गेट, सी आई विल शो यू हियर। Therefore x is equal to 110 divided by 22। Therefore x is equal to कितना आता है आंसर, 22 5s are 110। गॉट इट अप टू दिस स्टेप? समझे क्या? देखो समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर इज, तो पहले हम डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। द डिजिट्स आर, अभी इधर देखो x की वैल्यू मिली, x हमने क्या कंसीडर किया देखो इधर जरा, लेट अस कंसीडर द यूनिट प्लेस डिजिट इज x और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है y, करेक्ट है, टेंस प्लेस डिजिट इज y, बट y की वैल्यू क्या है x प्लस 3। तो डिजिट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, देन द डिजिट्स आर यूनिट प्लेस x इज इक्वल टू क्या है 5 एंड टेंस प्लेस y is equal to x plus 3, that is equal to 5 plus 3, that is equal to 8। अभी नंबर हम फाइंड करेंगे, द नंबर इज, ओके, द नंबर इज, ये टेंस प्लेस का डिजिट है तो 10 इंटू 8 प्लस ये यूनिट प्लेस का डिजिट है तो 5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8 80 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा 85। तो नंबर कौन सा है वो 85। समझे? अंडरस्टूड? गॉट आइडिया? आई होप सो यू आर गेटिंग लिटिल आइडिया अबाउट इट। थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है लेकिन सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो एग्जाम्पल को तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके, और एक एग्जाम्पल मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ,
बाद में हम फिर से डिस्कस करेंगे पहले एग्जाम्पल के बारे में। इस टाइप का एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है। अर्जुन इज ट्वाइस इज ओल्ड एज श्रिया। 5 years ago his age was 3 times Shriya's age. His 3 times Shriya's, यानी कि श्रियाज एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इधर हमें क्या करना है, उधर उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने। अर्जुन इज ट्वाइस इज ओल्ड एज श्रिया, यानी कि अर्जुन का एज श्रिया के एज से ट्वाइस है, यानी कि श्रिया का एज अगर x है तो अर्जुन का एज 2x होगा। आर यू गेटिंग? तो कंडीशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। फिर से पहला एग्जांपल मैं रिपीट करूंगा, पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, अर्जुन का एज क्या है, श्रिया के एज से ट्वाइस है, तो लेट अस कंसीडर श्रियाज एज। सपोज यू हैव कंसीडर श्रियाज एज इज व्हाट, x. Do you understand what I said? Let us consider Shriya's age is x. Then Arjun's age is क्या बोला है, अर्जुन्स एज इज ट्वाइस इज ओल्ड एज श्रिया, यानी कि 2 into x दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2x. गॉट आइडिया? ओके, दोनों भी ईयर्स में है, x ईयर्स एंड अर्जुन्स एज इज व्हाट, 2x ईयर्स. समझे? पहले कंडीशन हो गई। बाद में देखो 5 years ago हीज एज वॉज 3 times श्रियाज एज। अभी 5 years ago क्या होता है एजेस, वो फाइंड आउट करेंगे। 5 years ago श्रियाज एज। ओके, श्रिया का एज क्या है अभी, x है। 5 years ago यानी कि 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, -5। यह है श्रिया का एज 5 years ago। 5 years ago अर्जुन्स एज, अर्जुन का एज किधर है, इधर है क्या है, 2x। 5 साल पीछे यानी कि 2x - 5। गॉट आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं समझे? देखो इधर ये हमने क्यों लिखा है, लेट अस कंसीडर श्रिया का एज ही हमने कंसीडर क्यों किया है। देखो इधर अर्जुन्स एज इज ट्वाइस इज ओल्ड एज श्रिया, यानी कि अर्जुन का एज श्रिया के एज के डबल है। तो श्रिया का एज अगर हमें मालूम है तो हम अर्जुन का एज इजीली निकाल सकते हैं। तो श्रिया का एज हमने x कंसीडर किया तो अर्जुन का एज उसके डबल हो गया। 5 साल पहले 5 years ago हिज एज वॉज 3 times द श्रियाज एज। 5 साल पहले का एज क्या होगा, देखो अभी श्रिया का एज है x, तो 5 साल पहले x - 5। अर्जुन का एज है 2x, तो 2x - 5। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू करेंगे, देखो 5 years ago ये जो एज है x - 5 और 2x - 5, इसमें क्या रिलेशन है, देखो 5 years ago हिज एज वॉज 3 times द श्रियाज एज, यानी कि अर्जुन का एज जो है 2x - 5 ये श्रिया के एज से 3 times था। ओके, देन क्या करेंगे, देखो अर्जुन का एज 2x - 5 इज इक्वल टू 3 times किसके एज से है, श्रिया के एज से, यानी कि 5 साल पहले अर्जुन का एज 3 times था किसके एज से, श्रिया के एज से। अब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा, x यानी कि श्रिया का एज मिलेगा। सॉल्व करो, अंडरस्टूड? 2x - 5 इज इक्वल टू 3 into x, 3x प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 into 5 15। देयरफॉर क्या करेंगे, देखो अब ये 3x बड़ा नंबर है, ये 2x छोटा नंबर है, तो ये इसको ट्रांसफर करेंगे और ये इधर लेंगे -5, ये माइनस ये प्लस होगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 3x, ये ट्रांसफर करो -2x। क्या किया, देखो -5 एज इट इज लिखा है, ये माइनस का इधर प्लस होगा, इसको इधर ट्रांसफर किया है, 3x एज इट इज, ये प्लस है ये माइनस हो गया। देयरफॉर -5 + 10, -5 + 15, अपोजिट साइंस आर देयर, सब्ट्रैक्शन। 15 - 5 10, ग्रेटर नंबर इज 15, इट्स साइन इज व्हाट, प्लस, दैट्स व्हाई +10। 3x - 2x x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 10। ओके, x इज इक्वल टू 10। व्हाट इज दिस x हमने क्या कंसिडर किया है, देखो लेट अस कंसिडर श्रियास एज इज व्हाट, x।
यानी कि x हमें क्या मिला 10, तो 10 यानी कि क्या है, श्रेयाज एज इज 10 ईयर्स और अर्जुन का एज उससे डबल, अर्जुन्स एज 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? इधर देखो, x हमने प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने थे, तो x हमने प्रेजेंट एज श्रेया का कंसिडर किया, अर्जुन का एज हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर यानी कि इस कंडीशन से आता है, अर्जुन एज इज ट्वाइस एज श्रेयास एज, तो 2x हो गया। फिर से बता रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल फिर से, अर्जुन्स एज इज ट्वाइस इज ओल्ड एज श्रेया, तो हमने श्रेया का एज कंसिडर किया, ट्वाइस यानी कि डबल हो गया अर्जुन का एज। 5 साल पहले दोनों का एज निकालना था, तो -5 कर दिया दोनों के एज में से, x -5 एंड 2x -5। 5 साल पहले कंडीशन थी 5 years ago his age was 3 times the Shreya. Okay, according to that condition we got here Arjun's age is before 5 years 2x -5 and 3 into x -5 means 3 times the Shreya's age. Yeah, this is the Shreya's age. We solved it and we got x is equal to 10, means Shreya's age is 10 years and Arjun's age is 20 years. Okay, पहला एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ, देखो इधर बहुत ही लंबा एग्जाम्पल हुआ है अपना, इंपॉर्टेंट है। द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसलिए हमने 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, एक यूनिट प्लेस का डिजिट होता है, टेंस प्लेस का डिजिट। वी हैव कंसीडर यूनिट प्लेस डिजिट x एंड टेंस प्लेस डिजिट y, बट इधर एक कंडीशन दी है, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, डिफरेंस है उसमें 3 का, तो y माइनस एक्स टेंस प्लेस डिजिट माइनस यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 3। इधर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और बाद में हमने नंबर फाइंड आउट किया टेंस प्लेस की डिजिट को, यानी कि y है टेंस प्लेस का डिजिट, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है x प्लस 3, इधर लिखा है x प्लस 3, और ये यूनिट प्लेस का डिजिट x इधर हमने कंसिडर किया है वो x। ओके, टेंस प्लेस का डिजिट है y, तो y की वैल्यू हमने इधर लिखी। टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 1 यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। ओके, ये नंबर यानी कि हमने डिजिट्स इंटरचेंज किए, जिधर यूनिट प्लेस था उधर टेंस प्लेस लिया और जिधर टेंस प्लेस था उधर यूनिट प्लेस लिया, हमें 2 नंबर मिले। बाद में हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व किया, तो हमें ये फाइनल आंसर मिला। ओके, नंबर कौन सा था 85, कैसे निकालना है निकाला है इधर आई हैव शोन। ओके, नोट्स के लिए पेज दिखा रहा हूँ, देखो फिर से ध्यान से देखो और एज इट इज़ कॉपी करो। जो ऑडियो है वीडियो का वो भी ध्यान से सुनो, क्या बताया है समझने की कोशिश करो, समझ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जाम्पल है, इसके पहले हमने इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं देखे थे। अबाउट आई एम टेलिंग दिस डिजिट एग्जाम्पल, ये अर्जुन और श्रेया का जो एग्जाम्पल है ये हमने इसके पहले भी इस टाइप के एग्जाम्पल देखे हैं। ये है नोट्स, एज इट इज तुम नोट्स में कॉपी करो। Here we got the answer. Remaining examples will continue in the next video. Thank you.